So, welcome to our today's lecture. In our today's lecture, we are going to start the differentiation of parametric functions. Differentiation of parametric functions. Differentiation of parametric functions. So first of all, let me look at the camera. I have aligned it very good. Yes, ठीक है. What do we mean by parametric functions? Sometimes x and y are not directly connected. For example, अगर मैं इसमें लूँगा x square plus xy plus y square is equal to 0. Here x and y are directly connected by means of the equation x square plus xy plus y square is equal to 0. Sometimes it is possible that x and y are not directly connected. They are expressed in terms of a new variable or in terms of a new parameter. Parameter मतलब हो गया कोई भी variable. Then we call in that case x and y to be the parametric functions of that variable. For example, अगर मैं x लिखूंगा इस तरह x is equivalent to phi of t, where phi of t is a function depending upon the value of t. Likewise, my y is equivalent to psi of t, where psi of t is a function depending upon the value of t. But I want to find what is the relation between x and y. Means what is the differentiation of y with respect to x. Means I want to find dy divided by dx. ये मैं ढूंढना चाहता हूँ. तो कैसे मैं differentiation करूंगा y की with respect to x? The rule is very simple. You first of all do differentiation of y with respect to t, because y की तो हो जाएगी differentiation with respect to t, because y has been expressed in terms of t. उसको आप divide कीजिए differentiation of x with respect to t. Means dx divided by dt. ठीक है. जब मैं इन दो derivatives का quotient लूंगा, when I will take the quotient of these two derivatives, dt as such, it seems out to be that they will get cancelled and I will get dy divided by dx. So this expression, जो मैंने यहाँ पर ये expression लिखी, this expression will come into the rescue to differentiate the parametric functions. फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे पैरामीट्रिक फंक्शन कौन कौन सी है. मिसाल के तौर पर अगर मैं लूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेक द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. आपको याद होगा हम y को लिखते हैं 2at और हम लिखते हैं x को 80 स्क्वायर. आप देख लीजिए y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t, x हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t. और आप देख लीजिए जब x और y का वैल्यू है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. आप x y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए 280, बनेगा 280 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है अपनी जगह, और आप x का वैल्यू डाल दीजिए 80 स्क्वायर. एक मिनट में कैमरा की ओर देखता हूं. 80 स्क्वायर ये आपके बोर्ड में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बोर्ड में आ रहा है. तो इट सीम्स आउट दैट 280 स्क्वायर 280 का होल स्क्वायर, that's 4a square t square is equal to 4 ऐसी a square ऐसी t square ऐसी. तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. और ये क्या होता है? आप पूछेंगे सर आपने इस जो मेरे पास x है, आपको ने x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ t, y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ t. व्हाट डज दिस मीन? जो मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यू नो दैट मैंने आपको पढ़ाया है द पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस. और ये जो मेरे पास x है जो मैंने लिया 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, इट इज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला. मतलब जो मेरे पास 80 स्क्वायर का 280 है, इट इज एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस पैराबोला. अब t का वैल्यू कोई भी देते जाइए, ये इस पैराबोला पर आता जाएगा. ये फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला. सो हम पैराबोला की इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए न्यू पैरामीटर x is equal to 80 square, y is equal to 280. मतलब ये जो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू x is equal to 80 square, y is equal to 280.
दिस इज ए न्यू इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, या मैं इसको कहूंगा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. y square is equal to 4x. Now here I want to differentiate y with respect to x. तो टेक्निक वही है, the same expression will come into the rescue. मतलब क्या, if you want to find dy divided by dx, first of all you need to find dy divided by dt, then after you need to find dx divided by dt, then take the quotient of the two, you will get dy divided by dx. First of all I need to find dy divided by dt. dy divided by dt मतलब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज इक्वल टू 2a t की डिफरेंशिएशन आएगी 1 विद रिस्पेक्ट टू t. लाइकवाइज अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज dx डिवाइडेड बाय dt, a तो अपनी जगह t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2t, तो मेरे पास आएगा 2at. देयरफॉर अगर मुझे ढूंढना होगा, इफ आई हैव टू फाइंड व्हाट इज dy डिवाइडेड बाय dx, आप कहेंगे सर dy डिवाइड बाई dx इट विल बी इक्वल टू dy डिवाइड बाई dt होल डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई dt. dx डिवाइड बाई dt. What is dy divided by dt? That is 2a. What is dx divided by dt? That is 2at. 2a cancel. I will get 1 by t. So differentiation of y with respect to x is 1 by t. Reciprocal of the parameter. This is how we do the parametric differentiation. I think it is very quite simple. You are able to understand it. It's not so hard and fast to. Now I will take the question from your textbook of R.D. Sharma. For example, first of all, do the differentiation of, मेरे पास है find dy divided by dt जब मेरा x होगा is equal to a times cos of t plus half of log of tan square times t divided by 2, और मेरा y होगा y is equal to a times sin of t. ये मेरे पास होगा. I want to find the differentiation of x y with respect to t. So first of all, अगर आप यहां पर देखेंगे, what is my dy divided by dt? My dy divided by dt is a अपनी जगह sin t की डिफरेंशिएशन आएगी cos t. वेरी गुड. उसके बाद dx डिवाइड बाई dt भी मुझे चाहिए. पहले मैं कैमरा की ओर देखता हूं. ठीक है, मुझे लगता है हाँ. नाउ आई नीड dx डिवाइडेड बाई dt. dx डिवाइड बाई dt, a अपनी जगह, प्लीज हैव कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मी. cos t की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस sin t, बिकॉज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस sin, प्लस 1/2 ऐसे ही लगेगा, वो मैंने लगा दिया. अब ये मान लीजिए आप log of x के बदले मेरे पास है tan स्क्वायर डिवाइड बाई 2. log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो tan स्क्वायर t बाई 2 की log of tan स्क्वायर t बाई 2 की डिफरेंशिएशन आएगी 1/tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2. और उसके बाद आपको आगे भी जाना है, फिर tan स्क्वायर t बाई 2 की डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पर मैं दिखाता हूं आपको tan स्क्वायर t बाई 2 की डिफरेंशिएशन. tan स्क्वायर t बाई 2, आप tan स्क्वायर को मान लीजिए x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आती है 2x, तो tan स्क्वायर की कितनी आएगी 2 टाइम्स tan, वो आएगा 2 टाइम्स tan t बाई 2. पहले मैं कैमरा को यहां पर लगाता हूं, आपको नजर नहीं आता होगा. हाँ, tan t बाई 2. ठीक है, फिर इंटू होगा, मैं यहां पर इंटू लिख देता हूं भाई, मैं यहां पर इंटू लिख देता हूं. फिर tan की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर, एंगल ऐसे ही रहेगा t बाई 2. फिर t बाई 2 की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2. वेरी गुड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2. वेरी गुड. ये ऊपर वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. सो मेरा जो dx डिवाइड बाई dt आएगा, dx डिवाइड बाई dt, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है. dx डिवाइड बाई dt लिखा मैंने, हाँ, dx डिवाइड बाई dt इट विल बी इक्वल टू a मैं अपनी जगह लिखूंगा, माइनस साइन ऑफ t वो भी अपनी जगह, tan t बाई 2, नीचे tan स्क्वायर t बाई 2, नीचे एक ही tan t बाई 2 बचेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ t डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, और ये 1/2 ये मैंने यहां पर लगा दिया. जो 1/2 लास्ट में आया था ना, कैमरा को मैं यहां पर मोड़ता हूं,
नहीं, आपको तो नजर आ रहा है। जो 1/2 है वो यहां पर आ रहा है, और जो सीकेंट स्क्वायर t/2 है उसको मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट होता है 1/cos स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर t/2 हो गया 1/cos स्क्वायर t/2। फिलहाल आई होप दैट यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, प्लीज हैव पेशेंस। दिस इज a माइनस साइन ऑफ t, वो भी मैंने लिखा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan t/2 को मैं लिख सकता हूं sin t/2 होल डिवाइडेड बाई cos t डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, and this is further equivalent to 8 times minus sine of t plus cos t by 2 they will go. I am left with 1 divided by sine of t by 2 into cos of t by 2. Very good. But we know that, ये आपको फॉर्मूला याद होगी ना, ये फॉर्मूला आप साथ साथ में नोट करो। साइन ऑफ 2 थीटा हमारे पास होता है, इट्स ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा हमारे पास होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 होता, कॉस थीटा बाई 2 होता, तो यहां पर आता साइन थीटा, आता ना। जब एंगल होगा थीटा तो एंगल का हाफ यहां पर होता है। लाइकवाइज अगर मेरे पास ट्वाइस tan t/2 cos t/2 है, तो उसके बदले आना चाहिए साइन ऑफ t बाय द विर्च्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। So this is further equivalent to 8 times minus sine of t plus 1 divided by sine of t. So this is further equivalent to, दिखाई दे रहा है? हाँ, नीचे तो दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर मैं लिखता हूँ, शायद आपको नीचे से ना दिखे। और जो आपके पास dx डिवाइडेड बाई dt आएगा, इट्स इक्वलेंट साइन टी हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी, 8 टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी। वेरी गुड। सो दिस इज 8 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन ऑफ टी। फिलहाल थोड़ा सा काम मेरा बन गया, ऑलमोस्ट बन गया। Now what I need to find, I have found dx divided by dt, dy divided by dt. आप पूछेंगे सर हमें dy divided by dx ढूंढना था, तो मेरा जो dy divided by dx आएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था dy divided by dx अगर मुझे ढूंढना है, first of all I need to find dy divided by dt, then take its quotient with dx divided by dt. और मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। What's dy divided by dt? That's 8 times cos of t. वो तो हमने ऑलरेडी निकाला था और आपने नोट भी किया होगा। dx divided by dt, that's 8 times cos square of t divided by sin of t. Very good. a और a चला जाएगा। This is further equivalent to, तो ये आगे आ जाएगा यहां तक। This is equivalent to cos of t इंटू, इसको फ्लिप होगा, sin t ऊपर चढ़ेगा, cos स्क्वायर t नीचे जाएगा, cos t कैंसल, एक cos t कैंसल, तो आएगा sin t by cos t, that is tan of t. Very good. I have found dy divided by dx and that is that's tan of t. So this is how we do the differentiation of parametric functions. This is the technique how we do the differentiation of the parametric functions. I hope that you understood it quite well. इसकी मुझे बता देना, लेक्चर आप देख रहे हो, जो देख रहा है वही इसका जवाब भी देगा बाद में। मेरे पास है x इज इक्वलेंट टू, दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल, मेरे पास है इसका पार्ट सेकंड, x इज इक्वलेंट टू 8 times theta minus sin of t and my y is equivalent to 8 times 1 minus cos of theta, सॉरी sin of theta, और यहां पर है cos of theta. Again you have to find dy divided by dt. तो वो ढूंढेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके मैं 2 तरीके आपको दिखाऊंगा।
तो देख लीजिए वो दो तरीके क्या है, ये आप खुद करेंगे और आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। पहले इससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास x है 8 टाइम्स secant cube of theta, my y is equivalent to 8 टाइम्स tan cube of theta। आप इसमें देख लीजिए, फाइंड dy डिवाइड बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये आपको भाई ढूंढना है। देखो जब आप dy डिवाइड बाई dx ढूंढोगे तो जो उधर एक्सप्रेशन आएगी बाद में आप उसमें थीटा का वैल्यू डालेंगे पाई बाई 3 एंड यू विल फाइंड आपको कितना वैल्यू मिलेगा। सो उसी को हम कहते हैं dy डिवाइड बाई dx फाउंड एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। मैं पहले आपको कह रहा हूं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड dy डिवाइड बाई dx बाय मींस ऑफ द फॉर्मूला dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, अभी dy डिवाइड बाई dt नहीं आएगा, अभी dy डिवाइड बाई d थीटा आएगा, बिकॉज x हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा और y also has been expressed in terms of theta. Due to this, you will get dy divided by d theta whole divided by dx divided by d theta. d theta will go and you will get dy divided by dx. फिर जो आपको मिलेगा उसमें आप थीटा का वैल्यू डाल दीजिए पाई बाई 3. So that does mean we have found dy divided by dx and theta is equal to pi by 3. I hope that my students can do it. Now coming to the next question. My next question is जनाब, if x is equal to, और इसकी भी आप देख लेना, अगर मेरे पास x होगा 8 टाइम्स cos क्यूब ऑफ t और मेरा y होगा 8 टाइम्स sin क्यूब ऑफ t, you will find dy divided by d theta, dt, sorry, dy divided by dx, I'm sorry, you will find this thing. Now I have the question. The question goes like this. If x is equal to, अगर मेरे पास x है अंडर रूट ऑफ 8 a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ t और मेरा y है अंडर रूट ऑफ a रेज पावर कॉस इनवर्स ऑफ t, you have to prove that। और a क्या है, a is a पॉजिटिव क्वांटिटी और जो आपका y है, सॉरी t है, it lies between minus and 1 and plus 1, वो तो आएगा ही because sin inverse of t always lies between minus 1 and plus 1, t is greater than minus 1 less than plus 1, you have to prove that जो आपके पास dy divided by dx आएगा, I think it is equivalent to minus y divided by x। इस क्वेश्चन के लिए I think this is the important question, maybe it may be asked in the exams। हाँ दिखाई दे रहा है जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रूट ऑफ एक्स होगा, आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ये तो सीधी सी बात है, बिकॉज अगर मैं रूट एक्स लूंगा, रूट एक्स मीन्स एक्स रेज पावर 1/2, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन आती है एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1, तो एक्स रेज पावर 1/2 की डिफरेंशिएशन आएगी 1/2 इंटू एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1, इसी को आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 1/2 रूट 2। तो आप याद रखेंगे दिस थिंग, और आपको ये भी पता है these formulas will come into the rescue, differentiation of a power x, that is a power x into log of a to the base e। खुदा ना खास्ता ये भी मैंने दिखाया, ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड dy डिवाइड बाई dx। अब सामने x आ रहा है तो इसी की डिफरेंशिएशन करेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dx डिवाइड बाई dt? ये मान लीजिए आप रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन आती है 1/2 रूट एक्स के बदले है a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ t, फिर इनटू ये मान लीजिए आप इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, ये जो आप देख रहे हो इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, a पावर x की डिफरेंशिएशन आती है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस c, तो a पावर साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन आएगी a पावर साइन इनवर्स ऑफ t इनटू log of 8 to the base e, फिर sin inverse t की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी। I know the differentiation of sin inverse of x is under root of 1 minus x square, so sin inverse t की डिफरेंशिएशन आएगी under root of 1 minus t square। तो ये बला आ गई,
साइन इनवर्स मतलब जो मेरे पास ये इसकी डिफरेंशिएशन इतनी आती है फिलहाल। थोड़ी सी मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूं, dx डिवाइड बाई dt। अब देख लीजिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ t रेज पावर 1 है। ये a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ t स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 1/2। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ t के ऊपर पावर 1 है, a रेज पावर साइन इनवर्स t के ऊपर पावर 1/2 है। तो जब कोशंट होगा, डिवीजन होगा, तो उस वक्त पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दिस 1/2 तो आएगा a रेज पावर साइन इनवर्स ऑफ, बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2 इनटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, इसके साथ मैंने छेड़ा नहीं, डिवाइड बाय ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये भी ऐसी 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली मैं y की डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास dy डिवाइड बाई dt आएगा, dy डिवाइड बाई dt आएगा। मान लीजिए रूट x है, रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, सो 1/2 रूट x के बदले a रेज फॉर कॉस इनवर्स ऑफ t, तो मैंने लिखा सॉरी a रेज फॉर कॉस इनवर्स ऑफ t इनटू a पावर कॉस इनवर्स t की डिफरेंशिएशन। मान लीजिए ये a रेज पावर x है, a पावर x की डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e है, तो a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t की डिफरेंशिएशन आएगी a पावर कॉस इनवर्स ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो इसका मल्टीप्लाई होगा जनाब, पहले मुझे लिखना है a रेज फॉर कॉस इनवर्स ऑफ t इनटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स t की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी। अगर साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स की कितनी होती है? कॉस इनवर्स की आती है यही जो साइन की आई, बट विथ माइनस साइन। तो कॉस इनवर्स t की डिफरेंशिएशन आएगी, मैं यहां पर लिखता हूं 1 डिवाइड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू जो मेरे पास dy डिवाइड बाई dx है, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, तो हाँ ये आएगा a रेज पावर एज बिफोर, जिस तरह a रेज पावर कॉस इनवर्स t के ऊपर पावर 1 है, a रेज पावर कॉस इनवर्स t के ऊपर पावर 1/2 है, बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो आएगा a रेज पावर कॉस इनवर्स ऑफ t रेज पावर 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2, और साथ में आएगा लॉग ऑफ a टू द बेस c, वो भी मैंने लिखा, होल डिवाइड बाय, मैंने 2 के साथ छेड़ा नहीं, वो भी मैंने ऐसे लिखा, तो नीचे डिवाइड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। और आप पूछेंगे सर माइनस साइन थी वो कहां पर गई, वो मैंने सामने लगा दी, ठीक है। सो आई गॉट द टू थिंग्स, dy डिवाइड बाई dt, dx डिवाइड बाई dt। नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ dy डिवाइड बाई dx। तो करना क्या है, आई टेक द कोशेंट ऑफ द टू